Hello everyone. In this video, we will discuss The Hindu September 4 Delhi edition newspaper. Our very first news is about the G20 summit as it is going to be held in Delhi from 8 to 10 September. So here the Prime Minister Narendra Modi said fiscally imprudent policies populism affect the poor. So here Prime Minister Narendra Modi has cautioned against the irresponsible financial policies and populism. It means that these measures will give a political result in the short term and there is a great social and economic price in the long term if anything handled irresponsibly. So here in an interview of the G20 summit, Modi said that he is warning the state against such plan which is irresponsible, fiscally irresponsible, and he dismisses the reaction against holding meetings in Kashmir, Arunachal Pradesh in the run-up to summit. Now, he also in an interview said that India had been sensitive to the neighbors such as Sri Lanka, which is going through the crisis, and he also mentioned the domestic situation and in that the state government should be conscious about financial discipline. They should spend responsibly. In the earlier DNA analysis, I already showed you that the revenue deficit of the state government, it is very high. Though the total deficit is very less, but the revenue deficit is very high. This shows that we are spending much more on the day-to-day expenditure and on these things rather than on the capital expenditure. So this is a very big issue that we are not creating an asset and we are just spending on the day-to-day expenditure. So this is a kind of system which can cause fiscal distress in the upcoming scenario. So that's why there has been a news, there has been a debate on this, that there is a need to regulate all these things and be responsible in that matter. Whether it at the National Conference of the Chief Secretaries or any such platform, he has said that with financially irresponsible policies and populism will give political result in the short term but not in the long term. So this was in news. You should know about the revenue deficit. What is it? What is the capital deficit and what is the total deficit which we are talking about, fiscal deficit. Okay. So these are the important terms which you should remember from this article. Moving further toward our next important article that is coming in from the state section, and here we will discuss about a remark about this particular Andhra Pradesh students stare at the prospect of losing local quota in educational institution. So Article 371D, it was promulgated to safeguard the rights of the local students in education. But here there is a fear of losing the local quota in educational institution. So just remember this article, Article 370, it was incorporated in the 32nd Constitutional Amendment Act in 1973 and right now it has been promulgated to safeguard the right of the local student in education, employment, especially in Andhra Pradesh, as both Andhra Pradesh and Telangana region, it had witnessed a spate of agitation in early 1970s. Okay. Other than that, there is no protective cover. There is no such constitutional protective cover in the future that the local student will get the quota or not. So that's why they are quite suspective of what will happen in the near future. And when the combined Andhra Pradesh is no longer a reality, so they will face problems like such in the upcoming future. Now in the 2014, when the government has issued the government order number 120, it was bracketing 120 seat in the medical college as an open category and this allowed the allocation of the seat to the student across the state and there was no local quota as such. So just remember 371D, just remember 32nd amendment. Through this, it was added in the constitution and what it provides, this is the important article. Only this much is important from this news. Moving toward a very important article from the editorial section that is about basically an act which will be soon amended and which will on this discussion is being going on. So Places of Worship Special Provision Act 1991 and the court's order and the ASI surveys are flawed and said by
Dushyant Dave. He is the senior advocate and he has wrote this article. So in the judgment, which was dated on November 9, 2019, the constitutional bench of the Supreme Court, comprising of CJI, Rajan Gogoi, Justice S.A. Bobde and Dr. D.Y. Chandrachud, Ashok Bhushan and S. Abdul Nazir, they interpreted the Places of Worship Special Provision Act in the case of M. Siddiqui through the legal representation versus Mahant Suresh Das and ORS. That was the Ram Janmabhoomi temple case. So just remember the whole bench name because it is again in news. So you should know that who were comprising this bench and who was the CJI at that time and what was the name of the case. So here the court gave a binding declaration of the law interpreting the act, and according to this, there was constitutional scheme before the law of the land and it binds all the court under Article 141 of the Constitution. So its decision, it must be followed by all the courts. Like for example, if Supreme Court is giving some decision or it is doing anything, it is giving a judgment, this decision is binding on all the high courts, on all the district courts and all the courts which is there within the boundary of the nation as said by Article 141. And here the court, whatever it is declaring, it is binding on all the mechanism, on all the courts, on all the law of land. It becomes a law of land and it binds all the court within the territory of India to follow such decision. So the preamble of the act states that an act to prohibit conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any place of worship as it existed on 15th day of August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto. So this particular 5-judge bench in the Ram Janmabhoomi case defined the act. This was the act which was there written in this particular preamble of this particular act. Now it has been interpreted in the Ram Janmabhoomi temple case by these all judges that this law enact to fulfill two purposes. What is these two purposes? First, it prohibits the conversion of any place of worship, and in doing so, it speaks about the future by mandating that character of a place of public worship, it should not be altered. For example, if some temple, it was earlier, it was a temple, then it was converted much before the 15th August 1947, 15th day of independence, August 1947, it was converted to a mosque. So it should remain such. इसके बाद कोई conversion होना नहीं चाहिए. यहाँ पे ये कहा गया है कि सबसे पहला इसमें ये बात की गई है कि जो फ्यूचर है by mandating the character of the place of worship, it shall not be altered. Second, ये बात क्या कहता है? The law seeks to impose a positive obligation to maintain the religious character of every place of worship as it existed on 15th August 1947 when India achieved the independence. For example, if it is a mosque, तो इसका mosque ही maintain करने की जिम्मेदारी हमारी होती है, state की होती है कि वो इसी को ऐसे ही maintain करे. तो यहाँ पे जो law है वो seek करता है कि पॉजिटिव ऑब्लिगेशन होगा रिलीजियस कैरेक्टर जो है हर एक जगह का जो आपका 15 अगस्त तक था उसको मेंटेन करने का. देन सेकेंड थिंग इज अबाउट द प्लेस ऑफ वर्शिप. इट इंक्लूड्स टेम्पल, मोस्क, गुरुद्वारा, चर्च, मोनेस्ट्री और एनी अदर प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी सेक्शन देयर ऑफ वट एवर द नेम कॉल्ड. तो यहाँ पे ये सारे आपके प्लेस ऑफ वर्शिप डिफाइंड है. अब इस डेफिनेशन में, इस एक्ट की डेफिनेशन में ये कहा गया है कन्वर्जन का मतलब क्या है. कन्वर्जन विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशन इंक्लूड ऑल्टरेशन और चेंज ऑफ वट एवर द नेचर इज. मतलब यहाँ पे टेम्पल से मॉस्क की कन्वर्जन हो गया या मॉस्क से टेम्पल, दिस इज कन्वर्जन. तो ये आपका कन्वर्जन कहा गया है इसकी ग्रामेटिकल वेरिएशन में कि आप ऑल्टर करेंगे या चेंज करेंगे उस जगह के नेचर को, दैट इज कन्वर्जन. सो दीज आर द थिंग व्हिच हैज बीन interpreted by the court under this act. Now the court further holds that section 3 जो है इस act का, it enacts a bar on the conversion of the place of worship of any religious domination or a section of it into a place of worship of different religious denomination or different segment. मतलब यहाँ पे simply आपका जो section 3 है
वो कन्वर्जन को रोकता है कि किसी भी सेक्ट में, किसी भी आपके रिलीजन का कोई वो प्लेस ऑफ वर्शिप हो, उसको आप बदल नहीं सकते, उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। सेक्शन 4 जो है ये आपका कहता है कि इट शुड बी प्रिजर्व द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ दैट प्लेस, इट शुड बी प्रिजर्व। और यहाँ पे आपका प्लेस ऑफ वर्शिप का जो रिलीजियस कैरेक्टर होगा, वेदर इट इज टेम्पल, वेदर इट इज मॉस्क और एनीथिंग, इट शुड बी प्रिजर्व, जो आपका 15 अगस्त 1947 में इसका स्टेटस था, उसी स्टेटस में। कोर्ट ने यहाँ पे कहा कि ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप कॉमनली नोन एज राम जन्मभूमि एंड बाबरी मस्जिद, इट स्टूड एग्जेम्प्टेड। इस क्राइटेरिया से कोर्ट ने इस जगह को, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को एग्जेम्प्ट किया। और यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर किया कि ये जो लॉ है दैट इम्पोजेस टू अनवेवरिंग एंड मैंडेटरी लॉ, अ बार इज इम्पोज्ड ऑन सेक्शन 3 ऑन द कन्वर्जन ऑफ द प्लेस ऑफ एनी रिलीजियस डिनोमिनेशन, मतलब कन्वर्जन नहीं हो सकता है अलग अलग सेक्शन में। और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन जो है प्लेस ऑफ वर्शिप को, इसको ब्रॉडेस्ट पॉसिबल टर्म में हमें डिफाइन करना पड़ेगा, एज आर्ग्यूड बाय द बेंच और एज आर्ग्यूड बाय द कोर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथर ने आपको एक्ट के बारे में बताया है, दैट व्हाट इज द एक्ट, व्हाट आर द वेरियस सेक्शन ऑफ द एक्ट, हाउ द कोर्ट इंटरप्रेटेड दिस एक्ट, देन it is talking about the exemption given to the Ram Janmabhoomi and Babri Masjid. Okay, now moving further, यहाँ पे आपका पार्लियामेंट का इंटेंशन देखते हुए जस्टिस ने एम्फसाइज किया यहाँ पे कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इट वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ 1991 बाय पार्लियामेंट टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज वी आर अ सेक्युलर कंट्री, राइट। यहाँ पे सेक्युलरिटी का क्या मतलब है कि जो भी आपके रिलीजन है, स्टेट हर एक रिलीजन को एक तरीके से देखेगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, कोई भेदभाव नहीं होगा और हर एक रिलीजन को एक तरीके से देखेगा। देयर इज नॉट अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करते, वहां पे रिलीजन और स्टेट दो अलग एंटिटी है, बट यहाँ पे रिलीजन को देखेगा स्टेट, बट सारे रिलीजन को एक तरीके से देखेगा। दैट इज द ईस्टर्न कॉन्सेप्ट और इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म। तो यहाँ पे क्योंकि हम सेक्युलर अपने आप को कहते हैं, हमारा पार्लियामेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेक्युलर कहता है, तो यहाँ पे जो आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, इट वाज इनेक्टेड इन 1991 इसी मोटिव को सामने रखने के लिए। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको एक सिक्योरिटी देता था या आपको एक गारंटी प्रोवाइड करता था कि जो भी आपका रिलीजियस कैरेक्टर है आपकी प्लेस ऑफ वर्शिप का, वो वैसा ही प्रिजर्व रहेगा जैसा वो 15 अगस्त 1947 में था। और यहाँ पे कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, इट वाज अगेंस्ट द कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप। So Parliament determined that independence from colonial rule furnishes a constitutional basis for healing the injustices in the past। और यहाँ पे हर एक रिलीजन कम्युनिटी का, रिलीजियस कम्युनिटी का यहाँ पे कॉन्फिडेंस जीतने के लिए इस एक्ट को पास करवाया गया था, ताकि कोई भी प्लेस ऑफ वर्शिप को हमें यहाँ पे ऑल्टर ना करें लोग, और यहाँ पे जो भी उसका स्टेटस है वो प्रिजर्व रहे। साथ में जस्टिस इज एडेड दैट द लॉ स्पीक्स टू आवर हिस्ट्री एंड टू द फ्यूचर ऑफ द नेशन, कॉग्निजेंट ऑफ एज वी आर। यहाँ पे आपका बात किया गया है कि जैसा हमारा फ्यूचर रहेगा, हमने ऑलरेडी हिस्ट्री को देखा है, देयर वाज अ लॉट ऑफ फैक्शनलिज्म इन इंडिया, तो यहाँ पे इसीलिए हिस्ट्री और फ्यूचर को देखते हुए ये लॉ बनाया गया था उस टाइम पे। हिस्टोरिकल रॉन्ग्स अब हम उसको ठीक तो नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया, तो उसके लिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप जो है उसको प्रिजर्व करने की बात की गई थी कि अभी जो है एट प्रेजेंट पोजीशन 15 अगस्त में जो स्टेटस है उसको मेंटेन किया जाए। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो जस्टिसेस थे, दे डिसअप्रूव्ड द जजमेंट ऑफ जस्टिस डीवी वर्मा ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, अगेंस्ट व्हिच they were hearing the appeals in which the judge has held that places of worship special provision act does not debar those cases where declaration is sought for a period prior to the act came into force। As I told you 1991 में ये एक्ट आया था, तो यहाँ पे earlier this was case जो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, उसमें जस्टिस डीवी शर्मा ने यहाँ पे अपना जजमेंट दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, या जो बेंच था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो यहाँ पे बनाया गया था, उन्होंने ये कहा कि एक पीरियड 1991 से पहले से जो अगर केस चल रहा है तो उसमें ये लागू नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज किया गया, जस्टिसेस ने कहा था कि above conclusion DV Sharma directly contrary to the provision of section 42. section 42 जो है ये specifically contemplate करता है all the suits, appeals, legal proceeding existing on the day of commencement of the places of worship act with respect to the conversion existing on 15th August 1947 and pending before any tribunal authority shall abate and no suit, appeal or proceeding with respect to such matter shall lie after the commencement of the act. ओके तो यहाँ पे ये जो केस था ये बहुत दिनों से चल रहा था और जो जजमेंट आया था, जो ये एक्ट पास किया गया था वो 1991 में पास किया गया था. तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था अगस्त 4 2023 का, इट वाज रिफ्यूजिंग टू स्टे an order on the Allahabad High Court dated on August 2, 2023 in the Anjuman Imtiaz Masjid Committee. They were challenging the order of Allahabad High Court which reaffirmed the order of district and the session court. और यहाँ पे लीगैलिटी पे बात की गई थी और यहाँ पे जो आपके जज के बेंच थे, जो जजेस के बेंच थे, इन्होंने अपना जजमेंट दिया और यहाँ पे इन्होंने बोला this was completely wrong in allowing the ASI to survey on the premises. That is the key question for determination under the Act of 1991, and it is the religious character of the place of worship as it existed on August 15, 1947. Okay. The bench has singularly failed to follow a binding precedent in which Justice D.Y. Chandrachud, he himself was a party of Ram Janmabhoomi temple case, and there was no doubt that this Gyan Vapi mosque, it has been a place of public worship for centuries for the Muslim. और इसीलिए यहाँ पे एब्सोल्यूट या टोटल बार जो है चेंजिंग नेचर का, चेंजिंग कैरेक्टर का, वो लगाया नहीं जा सकता था. इसलिए यहाँ पे जो नेचर था मोस्क का वो अनटचेबल था एज इट एग्जिस्टेड ऑन द August 5, 1947. तो यहाँ पे ASI की इंक्वायरी का मतलब पर्पस क्या रहा, क्योंकि अगर ये एक्ट पास हो गया था तो यहाँ पे August 15, 1947 ज्ञान वापी मॉस्क की हम बात कर रहे हैं. आपका राम जन्मभूमि वाला जो केस था वो अर्लियर केस था, अभी यहाँ पे बात हो रही है ज्ञान वापी मॉस्क की. तो ज्ञान वापी मॉस्क जो है उसके बारे में बात की जा रही है. तो यहाँ पे अगर हमने ऑलरेडी इस एक्ट को पास किया था 1991 में और यहाँ पे ये चीजें हो चुकी हैं कि जो नेचर है उसका बदला नहीं जाएगा, तब ASI ने यहाँ पे इंक्वायरी क्यों की. तो ये आपका मेन क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने टोटली ओवरलुक किया है ऑब्लिगेशन अंडर द एक्ट व्हिच वर अपॉन द स्टेट एज आल्सो on every citizen of India and nation, and those who govern the affair of the nation at every level were bound by it. So Supreme Court is the ultimate custodian of the constitutional values. We know that. Applying that spirit in the judgment of Ram Janmabhoomi temple case, three court जो है they ought to have been extraordinarily mindful about the rights and the feeling of the minority community. So this was the whole article about. Now there is an opening of Pandora box. Question अब क्या रह गया है कि कितना दूर हम जाते हैं इस ऑर्डर को लेके. Do we order such a survey for every mosque? और क्योंकि यहाँ पे क्लेम कर रहे हैं लोग कि सिटीज और विलेजेस, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग ये भी कहते हैं कि ताजमहल, पहले आपका ताजमहल जो था वो एक शिव मंदिर था, या जो भी आपके ऐसे रेड फोर्ट वाले एरिया हैं वो सब पहले एक मंदिर हुआ करते थे. प्रेइंग जो है आपका साइंटिफिक सर्वे के लिए मथुरा मॉस्क पे ये बैन किया गया था, इसके ऊपर प्ली डाली गई थी. तो ये सारी चीजें हैं, ये सब अब आपका ओपन हो रहा है केस कि कैसे हम जस्टिस करेंगे और जो इनजस्टिस डन किया गया है मुस्लिम रूलर द्वारा हिंदूज पे, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे. So these are the main question which is opening up right now. Okay, so this was the whole article. What you have to remember from this article, don't get into the debate that what is right, what is wrong. Just remember about the article 141. Just remember about this particular act, these section. This much is important from your examination point of view. और जो constitutional bench बना था उसमें आपके कौन-कौन जजेस इसके पार्टी थी. ठीक है, इतना याद रखिएगा. Next news is about a very great achievement again done by the ISRO, that is the Aditya L1 mission. It is giving India's space program one more boundary to push. So here ISRO soft landed a robotic lander and rover on the moon
साउथ पोलर रीजन दैट इज द चंद्रयान 3, और साथ में इंडिया ने अपना फर्स्ट स्पेस मिशन डेडिकेट किया है फॉर द स्टडिंग ऑफ द सन, इट इज नेम्ड आदित्य L1। ओके, तो यहाँ पे इसरो ने ये आपका अभी लॉन्च हुआ है, ये रोवर जो है लूना रोवर जो है ये कंप्लीट हो गया था, आपका लॉन्च हो गया, पार्क हो गया, उसके बाद यहाँ पे आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है एंड इट इज गोइंग वेल। आदित्य L1 बेसिकली काम क्या करेगा, आदित्य L1 जो सन का आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज द कोरोना, क्रोमोस्फेयर एंड द फोटोस्फेयर, इन 3 लेयर को जो आदित्य L1 मिशन है वो स्टडी करेगा एंड इट इज हैविंग मल्टीपल वेवलेंथ इन इट्स सूट दैट इज कंसिस्टिंग ऑफ 7 इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपके 4 रिमोट सेंसिंग है और 3 इन सिटू है, मतलब ये आपकी डायरेक्टली सैंपल जो है जो भी आपका मिलेगा उसको ये स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसके साथ आदित्य L1 जो है वो फिटेड है और ये आपका पूरा स्टडी करके बताएगा अबाउट द, इट विल सॉल्व द मिस्ट्रीज लाइक द हाउ द कोरोना लेयर इज अफेक्टिंग अर्थ, हाउ द कोरोनल हीटिंग प्रॉब्लम इज अफेक्टिंग अर्थ। तो ये सारे जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इसका सोल्यूशन हमें इस पर्टिकुलर मिशन के थ्रू मिल जाएगा। ओके, सो दिस वाज इन न्यूज। Moving further toward our next important article, that is about the Global Hunger Index of 2022, which ranked India 107 out of 121 countries. So this is important. Just remember that India was behind Nigeria and Pakistan. तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ये आपका बेसिकली अंडर नरिशमेंट और हंगर इन सबको ट्रैक रिकॉर्ड करता है, इन सबका ट्रैक रखता है। कैसे? कैलोरी अंडर नरिशमेंट में, चाइल्ड मैल न्यूट्रिशन में, अंडर 5 मोर्टेलिटी में। तो ये इसके इंडिकेटर या डायमेंशंस होते हैं। 3 डायमेंशंस के बेसिस पे ये अपना इंडेक्स रिलीज करता है और उस बेसिस पे कंट्रीज को रैंक देता है। तो इंडिया का रैंक 107 था, टोटल 121 कंट्रीज को ये रैंक देता है। 2022 वाले इंडेक्स में इंडिया का रैंक वाज 107 एंड इट वाज मच बिलो द नाइजीरिया एंड द पाकिस्तान। Pakistan ranked 99. Pakistan is also improving than India in comparison with the global hunger index. अब हम यहाँ पे बात करें अगर State of Food Security and Nutrition in the World Report of 2022, it said that India is home to 224.3 million undernourished people. और साथ में यहाँ पे disparities भी बहुत अच्छे लेवल पे हैं। अलग अलग स्टेट जो हैं दे आर प्लेइंग डिफरेंट रोल और यहाँ पे इनका जो रोल है रिगार्डिंग द अंडर नरिशमेंट ये आपका दिखाता है कि हाउ वी आर लैगिंग इन अचीविंग आवर एसडीजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सो जस्ट रिमेंबर अबाउट द इंडिकेटर्स ऑफ GHI. So here there is 3 type of dimension. First one is stunting. Stunting का मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके कंपैरिजन में अगर किसी बच्चे का हाइट छोटा है तो दैट इज स्टंटिंग। वेस्टिंग का मतलब होता है वेट कम होना और साथ में मोर्टेलिटी को ये देखता है और साथ में ये अंडर नरिशमेंट में ये सारी चीजों को रखता है। अंडर 5 मोर्टेलिटी और जो स्टेट हंगर इंडेक्स है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द सेम इंडिकेटर एक्सेप्ट यहाँ पे क्या नहीं होता, कैलोरी अंडर नरिशमेंट नहीं होता। इसको ये रिप्लेस किससे करता है? BMI से, बॉडी टू मास इंडेक्स। ओके, इस अंडर नरिशमेंट से ये आपका रिप्लेस करता है। तो दीज 2 इंडेक्सेस आर कंपेरेबल और ये दोनों हमें दिखाती हैं अभी की सिनेरियो को कि इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड द वेरियस अफ्रीकन कंट्रीज और वी कैन से इंडिया इज लैगिंग बिहाइंड अ लॉट ऑफ कंट्रीज। अगर हम स्टेट हंगर इंडेक्स की बात करें तो बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ दे स्कोर्ड ओनली 35 और यहाँ पे ये एक अलार्मिंग कैटेगरी में आ रहे हैं कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा अंडर नरिश्ड हैं। वहीं बात करें गुजरात, यूपी, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, ये सारे आपके इनका स्कोर जो है इट इज अबव द नेशनल एवरेज दैट इज 29, बट दिस इज ऑल्सो नॉट सेटिस्फैक्टरी, हमें यहाँ पे भी इम्प्रूव करने की जरूरत है। देन देयर आर few, these states represent few African nation like Haiti, Niger, Liberia and Sierra Leone. So इनका जो comparison है वो किया गया है इन countries से, African countries से। वहीं अगर हम बात करें चंडीगढ़ की तो it scored 12, सिक्किम, पुडुचेरी and केरला they all scored below 60। और यहाँ पे जो स्टेट्स हैं जैसे आपके मणिपुर, मिजोरम, पंजाब, दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु, दे फॉल अंडर द मॉडरेट हंगर कैटेगरी
और जितने भी अदर स्टेट हैं जो आपके दे स्कोर्ड बिलो द नेशनल एवरेज दैट इज 20 के नीचे स्कोर किया है और अबव 20 एवरेज इनका 22 से 29 के बीच में है, तो ये आपके सीरियस हंगर स्टेट में आते हैं. सो दिस इज शोइंग दैट हाउ इज द अलार्मिंग रेट of hunger in India, and along with that there is a problem of undernutrition, and all these parameters should be taken into care before achieving. It will help in achieving the SDG if we are able to combat these things. Moving further toward our next important article that is coming from the text and context section. So this article we have discussed quite since a long time. यहाँ पे आपका आरटीआई एक्ट के बारे में बात किया जा रहा है. आरटीआई एक्ट इट वाज came into scene in 2005 and it helped citizen to obtain information and data from the central as well as the state institution. और जो भी आपका पब्लिक डोमेन में डेटा था जो आपका नॉर्मली हमें अवेल नहीं हो पाता था वो हम आरटीआई के थ्रू इसको अवेल कर सकते थे. तो आरटीआई एक्ट बेसिकली कोई भी सिटीजन जो होता है हु इज रिक्वेस्टिंग फॉर द एक्सेस ऑफ डेटा, डॉक्यूमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन जो भी आपके गवर्नमेंट पोजीशन में है उसको ये बेसिकली क्या करता है, सबके सामने लाता है, पब्लिक के सामने लाता है. लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती है जो प्रिवेसी रिलेटेड होती है या जो कंट्री के नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड होती है, वो इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे दें, लोगों को दें अगर वो डिमांड कर रहे हैं तब भी. तो यहाँ पे अब आपका आरटीआई एक्ट अगर अमेंड हो जाता है या ये जो आपका न्यू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आ रहा है, तो यहाँ पे ये जो आपका क्वालिफाइड प्रोहिबिशन था इसको ये टोटल प्रोहिबिशन में कन्वर्ट कर रहा है. साथ में आपका नेशनल कैंपेन फॉर पीपल राइट टू इंफॉर्मेशन, it has argued that there is a need to make social audit in the ration distribution which is impossible to carry out. और social audit जो होता है वो बेसिकली क्या करता है, जो कम्युनिटी मेंबर है उनका जो लिस्ट होगा राशन बेनिफिशियरीज का वो हम आपके आरटीआई के थ्रू मंगवा सकते थे पहले. बट अब जब आपका ये डीपी बिल पास हो जाएगा, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोडक्शन बिल, तो यहाँ पे ये आपका प्रिवेसी के टर्म्स में क्वालिफाई करेगा और ये डेटा शेयर करना जो आपके इंफॉर्मेशन ऑफिसर होंगे उनके लिए जरूरी नहीं होगा. तो ये आपका टोटल प्रोहिबिट कर देगा. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो आपको अंडरमिन करते हैं आरटीआई एक्ट को. और ट्रांसपेरेंसी जो है इट इज द जो आपके आरटीआई एक्ट है, सिर्फ यही एक तरीका नहीं है जिसके थ्रू हम ट्रांसपेरेंसी देख सकते हैं. देयर आर अदर ऑल्सो थिंग्स विच इज देयर. सो दीज इंक्लूड देयर इज एन आईपीओ, इंडियन पोस्टल ऑर्डर. तो यहाँ पे कुछ स्टेट जो है तमिलनाडु की वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती. यूजुअली ये सबसे इजी तरीका होता है, आईपीओ जो होता है इजीएस्ट मेथड होता है पेमेंट करने का. लेकिन अदर लेस कन्वीनियंट मेथड क्या होता है, कोर्ट फी या स्टैम्प पेपर, स्टैम्प जो होते हैं ये सारे आपके अदर वे होते हैं जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं. उसके अलावा जो आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के, सीआईसी के, एसआईसी के, दे ऑल्सो अंडरमिन द कॉन्फिडेंस इन द आरटीआई फ्रेमवर्क. जो आपके अपील्स होते हैं इनको सुनने के लिए ही कई महीने लग जाते हैं. तो यहाँ पे झारखंड एसआईसी जो है इसने अभी तक कोई भी कमिश्नर को इस अपील को सुनने के लिए अलाउ ही नहीं किया है मई 2020 से. और साथ में ये सस्पेंड कर देता है एबिलिटी टू अपील इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आरटीआई एक्ट. There are also a provision of online RTI. You can just simply pay the rupee which is there, nominal fees होती है, यूपीआई के थ्रू आप पे कर सकते हैं और ऑनलाइन आरटीआई आप फाइल कर सकते हैं. सो यूनियन गवर्नमेंट ने आरटीआई पोर्टल लॉन्च किया था 2013 में, जो आपका एक कह सकते हैं इजी वे था जिसके थ्रू हम क्या कर सकते थे, आरटीआई जो है वो ऑनलाइन डाल सकते थे. और यहाँ पे बहुत सारी पब्लिक अथॉरिटीज जो हैं गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट की, दे आर ऑन द पोर्टल और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली आपका यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर सकते थे. सो हेयर allowing the RTI application to be filed online, it largely removed some barrier instead of obtaining uncommon financial instrument. So citizens जो है they can simply file a request online and they can pay UPI through UPI. बट जो आपके बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं दे डू नॉट हैव एनी आरटीआई पोर्टल. इट वाज लॉन्च्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट इन 2013. कुछ एक्टिविस्ट जो हैं दे आर वार्निंग अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल एज इट विल वीकन द आरटीआई. और यहाँ पे आरटीआई जब आपका वीक होगा तो डेफिनेटली इट विल अफेक्ट द डेमोक्रेसी. ओके, सो दिस वाज अबाउट दिस होल आर्टिकल.
Moving further about other important article, that is one nation one election. Basically one nation one election का मतलब क्या होता है? For example, अभी हम देखते हैं स्टेट के जो इलेक्शन होते हैं वो अलग होते हैं, हमारा जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है वो अलग होता है. सो दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ बर्डन ऑन द इलेक्शन कमीशन, क्योंकि अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट करवाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अलग करवाओ, उसके बाद आपका जो पार्लियामेंट के लिए अलग करवाओ, तो ये सब चीजें जो होती है ये बहुत ज्यादा टायरसम प्रोसेस होती है. एंड देयर आर ऑल्सो इंस्टेंसेस कि कई बार इलेक्शन जो होता है वो कैंसिल भी हो जाता है. तो इसके चलते जो इलेक्शन कमीशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है. तो यहाँ पे सितंबर 1 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पैनल को सेटअप किया था कि कैसे हम एक नेशन एक इलेक्शन प्लान पे काम कर सके, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान. ओके, सो इट वाज सेटअप अ पैनल बाय द फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद टू एक्सप्लोर द फिजिबिलिटी ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन प्लान. ये जो आपका वन नेशन वन इलेक्शन ONOE प्लान है, यहाँ पे बेसिकली ये बस सिंक्रोनाइज करना चाहता है कि जो लोकसभा इलेक्शन हो और जो स्टेट असेंबली इलेक्शन हो उनका जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिड्यूस किया जा सके और इन सारे इलेक्शंस को एक साथ कंडक्ट करवाया जा सके. जब से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ है 26 जनवरी 1950 से, वी हैव 5 एवर जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा और स्टेट असेंबली जो आपके एक साथ साइमल्टेनियसली करवाए गए थे इन 1951 टू 1952. अब ये जो प्रैक्टिस था सारे स्टेट्स का साथ में और नेशन का साथ में कंडक्ट करवाने का, ये प्रैक्टिस 3 लोकसभा इलेक्शंस तक चला 1967 तक. उसके बाद ये साइकिल डिसरप्ट हो गया. साइकिल पहली बार ब्रोक हुआ था 1959 में जब आपका सेंटर ने आर्टिकल 356 जो था वो इन्वोक किया था केरला गवर्नमेंट पे, और फिर सर्टेन डिफेक्शंस के केस आने लगे, काउंटर डिफेक्शन के केस आने लगे. तो उसके बाद 1967 के बाद हमारा कभी भी साइमल्टेनियस इलेक्शन हुआ ही नहीं. तो यहाँ पे हमारा बेसिकली सेपरेट पोल होता है लोकसभा के लिए और सेपरेट पोल इलेक्शन होते हैं स्टेट असेंबली के लिए. अभी जो असेंबली पोल होने वाले हैं इन द स्टेट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दे आर हेल्ड टुगेदर विद द लोकसभा इलेक्शन. ओके, so 2018 में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया which was chaired by Justice B.S. Chauhan, just remember the name, it released a draft report for the simultaneous election कि मतलब आपका जो स्टेट और नेशन दोनों का इलेक्शन एक साथ हो जाए. और यहाँ पे इन्होंने बोला देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल क्वेश्चन रिलेटेड टू इट. फॉर एग्जाम्पल एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. हमने देखा है स्टेट गवर्नमेंट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी होती है, कभी भी सरकार गिर सकती है, कभी भी सरकार बन सकती है. तो यहाँ पे अगर सपोज करिए यहाँ पे सरकार गिर गई तो वहां पे क्या हम इलेक्शन कंडक्ट नहीं करवाएंगे, वहां पे हम वेट करेंगे कि कब आपका नेशनल इलेक्शन हो तो उसी के साथ हमारा इलेक्शन हो. तो ये आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है. सेम कैन बी इन द केस ऑफ नेशनल इलेक्शन जहां पे मेजोरिटी पार्टी नहीं है, कोalition गवर्नमेंट है. तो इस केस में ये सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं. एंड इन केस कहीं बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पे आपके प्रेसिडेंट रूल लगे रहते हैं, तो ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल वाले एरिया है उनका इलेक्शन कब कंडक्ट होगा, कब नेशनल इलेक्शन के साथ वो मैचअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और ये कितना प्रैक्टिकल सोल्यूशन होगा इसका, इस वन नेशन वन इलेक्शन प्लान का, ये आपका एक डिबेटेबल इशू है. तो ये आपका सिंक्रोनाइज करना चाहता है सारे जो लोकसभा के इलेक्शन है और स्टेट असेंबली इलेक्शन है, वन नेशन वन इलेक्शन प्लान. बट दिस आइडिया इज नॉट कंफॉर्मिंग विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरलिज्म, क्योंकि यहाँ पे देयर आर ऑल्सो अ प्रॉब्लम. जो लोग, अगर मैं स्टेट इलेक्शन में बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो मुझे स्टेट में चाहिए, लेकिन अगर मैं सेंटर की बात कर रही हूँ तो कुछ ऐसी पार्टी हैं जो मुझे सेंटर में चाहिए. बट अगर ये दोनों चीजें, दोनों इलेक्शन एक साथ होगा तो देयर कैन बी अ प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन अमंग द पीपल, दोज हु आर नॉट दैट मच लिटरेट, जो इतने पढ़े लिखे नहीं है उनको ये कंफ्यूजन हो जाएगा, और इस केस में एक पार्टी को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा और जो दूसरी पार्टी है उसको लॉस होगा. सो दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म, और यहाँ पे एंटायर नेशन को एक बना दिया गया है विच इज कॉन्ट्रोडिक्टरी टू आर्टिकल 1 which emphasizes that India is a union of state and we are quasi federal. We are not exactly federal, but we are quasi federal. Okay, so this is the whole debate about. Moving further toward our next important article, that is coming in from the
Assam government. So Assam government is forming a panel to draft the anti-polygamy law. असम गवर्नमेंट ने एक 3-member पैनल बनाया एंड इट विल ड्राफ्ट अ लॉ टू एंड द पॉलीगमी इन द स्टेट. और यहाँ पे कौन कौन इसके मेंबर हैं? एडवोकेट जनरल देवाजीत शेखैया, लीगल रिमेम्बरेंस कुटनल शर्मा पाठक और डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह. और ये लोग आपका चेक करेंगे कि दैट देयर इज न polygamy, there is no polygamy in the state and they will frame anti-polygamy law. So यहाँ पे आपका 149 इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन जो है इन्होंने रिस्पॉन्ड किया है and they are supporting the government and they are also there are few people who are also opposing the law. Okay, so here they want the state government wants to ban polygamy and here they want a anti-polygamy law. Okay, moving further toward our next important article that is coming in from the Aditya L1. So Aditya L1 mission जो है it is healthy in its new orbit. We already read about it कि Aditya L1 mission आपका launch हुआ था. It is the India's first solar observatory mission और ये स्ट्रैक और इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क सेंटर जो है इन्होंने सबसे पहला मेनोवियर, ये जो आपके अलग अलग ऑर्बिट है तो इसमें सबसे पहला मेनोवियर अपना अचीव कर लिया है और यहाँ पे अपने फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया है. ओके, एंड इट विल बी लॉन्च्ड एट L1 और लैग्रेंज पॉइंट 1 पे ये जाएगा. इट इज द फाइनल टारगेट बट राइट नाउ इट इज डूइंग मेनोवियर और ये अभी मेनोवियर कंप्लीट करेगा. उसके बाद ये now top commander of the navy will carry out a comprehensive review of the India's maritime security challenges and way to ensure tri-service synergy in a conclave which will be beginning on Monday amid the China military posturing. Okay, so just remember about this. So Defense Minister Rajnath Singh, NSA Ajit Doval, Chief of Defense Staff General Anil Chauhan, Army Chief General Manoj Pandey and Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. They will interact on this naval commanders at the conference which will be held in Delhi. और यहाँ पे ये इंटरैक्ट करके देखेंगे कि कैसे पॉसिबल है कि ये जितनी भी आपकी तीनों फोर्सेस हैं वो कैसे एक साथ काम कर सकती हैं और वो कैसे आपका कोऑपरेट कर सकती हैं. Moving further toward our international news. So here North Korea test fires the missile as a part of mock nuclear attack. तो यहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने अपना tactical nuclear attack करने के लिए जो अपने मिसाइल्स हैं उसको टेस्ट फायर किया है. So this is all for today. I hope you liked this lesson. I hope you enjoyed the video. Thank you for being here. Thank you everyone.